शिक्षण हे आदर्श ठेवूनच देता येतं. शिक्षण हे शस्त्राप्रमाणे असतं, त्याचा उपयोग कोण करीत आहे आणि कशासाठी करीत आहे यावर त्याचा परिणाम अवलंबून असतो. तो इस बार कराड all the way from the city of Mumbai. This is the first time Dr. Karad, our founder trustee, had conducted a press conference in Mumbai. It was really a pleasant experience. Thank you so much, because the questions were very thoughtfully asked and he was so happy to answer every question. So on behalf of all the universities, MIT Artisan and Technology University, MIT World Peace University, MIT University Shillong, MIT University Ujjain, and MIT University Solapur, an entire group of MIT group of institutions, I really thank all of you for coming here all the way, and I'm sure that you got the right message what he was trying to convey. Just few words I'll say. Since 1983, MIT Group of Institutions is working in the field of education. We started with one engineering college in the city of Pune, and today we have 5 universities across the country, and more than 54,000 students are passing out. And there are alumni of MIT Group of Institutions in every counter of the world, I'll say. When sir visited the place, I think even it is Dubai, London, or US or Chicago, all the alumni come to see him with the family and their students. I'll just say that education is a field where generations of the families come. Like, you know, the father has studied in the engineering college in 80s, and the son, and now their kids are studying in our schools. So I'm really grateful to every one of you that you could spare time for this conference, and I'm very sure every one of you will try to convey the right message for what this conference was held. Thank you so much. The tea and the high tea is served. Please have a time, and then you can have some discussion one-on-one, because sir will be waiting here for you. Thank you so much. And the scientists, they never needed any broadcaster or Google or anything, still we remember them. That means we were never manufacturing those people, we remember them with their work. Now we have a double chance what Dr. Karad has done, and with this work and with this so much of media happening today, I think it can be taken far and wide. That's the request. Thank you. Just one last point is, we are new to Mumbai because we are there in the rest of the Maharashtra, but my sister Dr. Mrs. Jyoti Dhakne, she is sitting there. We are opening a new school in Dahisar called MIT Vishwa Jyoti School, and we are also a college. We are also opening one CBSE school in Ulwe called MIT Vishwa Shanti Gurukul School. So we are trying to percolate the message of world peace through our education system. I think our Honorable Prime Minister had made national education policy which speaks about Indian philosophy and culture, which we are inculcating in our system since last 40 years. So it is a message from all of us. Thank you so much. Thank you. And the Vice Chancellor, Dr. Chitnis, Dr. Pandey, Dr. S.N. Pathan, former Vice Chancellor of Nagpur University, Dr. Mahesh Durve, तो वो जो उद्देश्य था 18 अप्रैल से, हम बिल्कुल सही पॉइंट पे आते हैं। 18 अप्रैल से आज इस मोमेंट तक उद्देश्य क्या है, शायद आपको सबको। और विश्व शांति की जब बात बनती है तो हर एक की अपेक्षा होती है विश्व शांति आनी चाहिए, लेकिन कैसे आए। तो 1983 से करार से ये काम करेंगे, ये एजुकेशन के माध्यम से ही हो सकता है। या संपूर्ण विश्व शांती डेलिगेशन याचा उद्देश काय होता, याची प्रामाणिकता, याची ऑथेंटिसिटी आणि याचा उद्देश आणि ती उद्देश प्राप्तीसाठी झालेले कार्य याबद्दल एक सिटीजन म्हणून काय वाटतं, म्हणून डॉक्टर संजय उपाध्याय यांना मी आमंत्रित करतो। एक परिचित नाव डॉक्टर संजय उपाध्याय, तपासकार, मन करावे प्रसन्न या कार्यक्रमाचे प्रणेते डॉक्टर संजय उपाध्याय। मेरा नाम है डॉक्टर संजय उपाध्याय, मैं MIT में करार के साथ काम करता हूँ, और आपके लिए भी थोड़ा खुशी का मौका यह है कि
पिछले कई दिनों से आप ब्रेकिंग न्यूज देख रहा, सभी धर्मों को इकट्ठा लाने का ये प्रयास है। मनुष्य के शरीर में दिमाग और देह के बारे में चर्चा हुई, लेकिन मन और आत्मा के बारे में चर्चा नहीं हुई। हमारे संतों की तरफ मैकॉले की कृपा से हम लोगों ने अंधश्रद्धा के रूप में देखा, जिसमें सबसे ज़्यादा ज्ञान छिपा हुआ है। उन संतों के शब्दों में हमने वो शास्त्र नहीं देखा। कोपरनिकस के पहले 250 साल संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा है कि सूरज स्थिर है और बाकी ग्रह घूमते हैं, लेकिन हमें भारतीयों को ये पता नहीं था, क्योंकि मैकॉले ने सिस्टम में ऐसी की। आपके पास आने की आवश्यकता इसलिए होती है बार बार कि करासर का ये काम जो इस टूर में उन्होंने किया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ के लोगों के साथ इंडो ब्रिटिश कुछ टाइप हो सकता है क्या, जिन विरोधों ने हम पे राज किया। जो अंग्रेज बार बार ये कहते रहे, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय पीपल्स कल्चर एंड इट्स आइडेंटिटी यू हैव टू अंडरमाइन इट्स रीजन एंड इट्स लैंग्वेज। वी द ब्रिटिश डिड दैट एज इंडियाज रूलर्स। ये उनका ट्रेड सीक्रेट पूरी दुनिया पे राज करते वक्त। लेकिन आज ये उल्टा हो रहा है कि यहाँ करासर वहाँ जाने के बाद उन लोगों की इच्छा है कि हम कुछ भारत के साथ टाइप तैयार करें, जिसकी वजह से मनुष्य को तैयार किया जाए शिक्षा के माध्यम से। वही बात वहाँ पे हुई फुलरटन हॉल में, शिकागो में। विवेकानंद के स्पीच को उसमें कार्विंग किया हुआ है स्टेयर। आप जाओगे शिकागो पे तो उस इमारत जो है आर्ट सोसाइटी ऑफ शिकागो के स्टेयर केस पे एक एक स्टेप पे एक एक सेंटेंस कार्व किया और उसको राइट किया गया है वहाँ पे। तो ये हमारे यहाँ पे कितना सिखाया गया, ये भी बात है। और ये सब काम किसने ऑब्जर्व किया? तो ये करासर का काम ऑब्जर्व किया उटाह यूनिवर्सिटी, विज्ञान यूनिवर्सिटी के लोगों ने ऑब्जर्व किया कि भारत में ऐसा कुछ काम हो रहा है। तो कभी कभी जैसे दिए के तले अंधेरा रहता है, वैसी स्थिति भी हो जाती है। तो मेरी विनती है MIT मैन, ये काम के पीछे जो हम केवल सपने में इच्छा करते हैं कि विश्व शांति होनी चाहिए, जितने भी वॉर्स चल रहे हैं वो बंद होनी चाहिए, न्यूक्लियर वॉर वेपन्स है वो भी खत्म होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए कहाँ से शुरू करें? आज जितने भी वॉर्स हो रहे हैं इसमें अनपढ़ रहना एक कारण भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि करासर की ये जो पूरी इतिहास है आज तक का 40 साल का, उसके बारे में शायद पहली बार मुंबई में ये इस तरह के पत्रकार परिषद इन डिटेल हो रही है। उनके इस टूर के पश्चात और उस यूनिवर्सिटी में जिस तरह से उनको पब्लिक से सम्मानित किया वो भी आपने देखा है। तो मेरी विनती है आपसे, सभी लोगों से विनती है कि क्या हम इस तरह से मीडिया के माध्यम से ये बात हर जगह पहुंचा सकते हैं क्या? अगर वो बात पहुंच गई तो उस बात में उनकी ताकत है कि वो अपना काम कर देगी, लेकिन इसने वो कैटलिस्ट बन के, कैरियर बन के उसको पहुंचाना है। और ये ट्रांसपेरेंट माइंड से देखोगे तभी बात बनेगी। प्री कंसीव्ड नोशन या प्री जुडिशियल नोशन भी नहीं होनी चाहिए। और ये एक अकेला आदमी 40 साल से काम कर रहा है। कोई शिक्षा, कोई यूनिवर्सिटी ऐसे काम नहीं करे जो इंद्रायणी के नदी के किनारे घाट तैयार करेगी, क्योंकि वो आखिरी अर्थक्वेक हुआ नेपाल में, काठमांडू में। क्या जरूरत है करासर को कि पुणे से जाकर काठमांडू में जाके वो जो पर्वत थे उस पर्वत पे जाके उन्होंने घर तैयार किए उन लोगों के लिए। 100 से ऊपर घर उन लोगों के तैयार करके दिए। उसका मॉडल आज भी MIT में तैयार किया, ये ऐसा मॉडल होना चाहिए। अब कल्पना कीजिए कि वहाँ जाके और नाम क्या दिया है, संत ज्ञानेश्वर नगर, संत तुकाराम नगर, बौद्ध ज्ञान, डॉक्टर विश्वनाथ करार नगर भी हो सकता है। लेकिन अब के बाद 50 साल के बाद कोई आदमी भारत का वहाँ घूमने जाएगा काठमांडू में तो वो कहेगा अरे यार संत ज्ञानेश्वर यहाँ आने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अब बारी है पत्रकारों की, मीडिया की, ये अच्छे काम जो है, जो ज्वाइनिंग न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है इसमें, ये ज्वाइनिंग न्यूज़ देने की भी कोशिश हम करें। ऐसी विनती मैं आपको करता हूँ यहाँ पे। और टूर का पूरा इन्फॉर्मेशन तो आपके पास आ जाएगा, आया भी होगा, लेकिन बड़े मन से इच्छा करता हूँ कि ये लोगों के पास पहुँचना चाहिए। और ये पहुँचाने का एक ही माध्यम हमारे पास है जो हमारे सामने बैठा है। तो आप सबसे विनती है कि ये काम जरूर करें। और करासर का ये काम जितना ज़्यादा जाएगा उतने और लोगों को भी उससे स्फूर्ति मिलेगी, इस तरह से होना चाहिए। धन्यवाद। ये कैसे होता है? इसे डिवाइन डेस्टिनेशन ऐसा होना चाहिए, डिवाइन मैसेज होना चाहिए। And this very photo which I have kept here, you can see.
I possibly every one of you, I don't know whether I have the copies right here, but I'll see that it reaches every one of you. In this it is written, philosopher Saint Sri Dhaneshwara, who says, may the darkness of the ignorance disappear and may this world see the light of knowledge divine. On this photo, philosopher scientist, never it was said philosopher scientist. Philosopher scientist Dr. Albert Einstein, who says, I believe in God, who reveals himself in the orderly harmony of the universe, and I believe that the intelligence and consciousness is manifested throughout Mother Nature. I appeal to you, friends, you might be having different branches, but read these two sentences. Forget about the rest of the part. And a very small brief film we have been shown, which is possibly the biggest. तथागत गौतम बुद्ध 17-18 वर्षाच्या वयात होता. ते चिंतन खूप उंचीच आहे. तेव्हा राजकारणाविषयी चर्चा करणं हा माझा काही काम नाही, माझा तो विषय नाही. मी तुम्हाला विनंती करेन की आपण दुसरं काय असेल तर बोलू. सर्वप्रथम आपल्याला डिलीट मिळाल्याबद्दल आपले खूप खूप शुभेच्छा देतो सर. आणि माझा प्रश्न असा आहे की आपण 11 सप्टेंबर 1893 साली स्वामी विवेकानंद त्या ठिकाणी गेले होते, शिकागो या ठिकाणी. आपण त्या ठिकाणी पुतळा स्थापन केलेला आहे, पुतळा बसवलेला आहे. बसवला नाही, तो आता खरं वाटेवर आहे. परत जाणार आहे आम्ही, कारण का तो वेळेवर पोहोचला नाही. विमानामध्ये ते मोठं 11 फूट आहे, तो मोठा असल्यामुळं ते लोड करता येत नाही अशी एक तक्रार झाली. त्यामुळे मग जहाजाने पाठवायचा का वगैरे असं झालं, तर तो पुतळा बसायचं ठरलंय. तो जाईल लवकरच आणि पुन्हा आम्ही जाऊन त्या ठिकाणी तो मोठा कार्यक्रम आता केला. ठीक आहे, धन्यवाद. गावाचा शब्द आहे आणि ही परीक्षा असते उभा आहे. मी नुसतं माझा ज्ञानेश्वर मोठा नाही, पण जेव्हा ज्ञानेश्वरांचं नाव मी घेतलं, तुकारामाचं नाव घेतलं, आईन्स्टाईनचं घेतलं, तेव्हा खरी कसोटी. शेकडो तिथले लोक जेव्हा नमस्कार करतात, वाकून सर मला आशीर्वाद द्या म्हणतात, म्हणजे ब्रिटिश. हे कशाचा चमत्कार आहे? मला थोडंसं कळलं त्यातलं म्हणून. त्यांना जे वाटत होतं की यांना काहीच कळत नाही, अशा प्रकारचा तो विषय. तर मला असं वाटतं याच्याबद्दल खूप चर्चा करण्यासाठी एकदा पुण्याला चढा सगळ्यांना घेऊन जाऊ, बसून करेल. सर, एक शेवटचा प्रश्न. ज्ञानेश्वरी, भगवद्गीता किंवा ज्ञानगीता किंवा बाकीचे ग्रंथ आता वाचण्याची पिढी बंद झालेली, लोक ऐकत पण नाही. मी तुम्हाला पुन्हा सांगतो की काल मी जेव्हा येताना माझं विमान चुकलं, आम्हाला न्यूयॉर्कहून डायरेक्ट विमान मिळालं नाही बॉम्बेला, म्हणून माझा मध्ये ते काही अबुधाबी तर तिथं ते मंदिर आहे अक्षरधामचं, परवा मंदिर. तर ते स्वामी PhD स्वतः. The highest diameter, the monumental creation, miracle of the world, wonder of the world, all these words have been used, but the best part is, in my opinion, as a teacher, as a believer, it is now being recognized world over. It's a spiritually oriented scientific laboratory. This word has been the cause for which possibly I was invited to America. And the conferring of a PhD, in my opinion, it is important, but I am not thinking that that was the most important event. More than the conferring of the PhD, the 23 or 25,000 sitting people here up there in the hall, and conveying this message to more than about 20 million people. And wherein the discussion of the very great philosopher set of India, Sir इस पत्रकार परिषद का अंत करते